معزز حاضرین جمعہ، میری پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان ملت، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج جس عنوان پر میں آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالوں گا، عنوان ہے نئے سال کی آمد اور خود احتسابی۔ عزیزان ملت، رات و دن کا بدلنا، ایام کا بدلنا، سالوں کا بدلنا، ان تمام چیزوں میں بڑی عبرتیں ہیں۔ اور یہ چیزیں، رات و دن کا بدلنا، رات آتی ہے پھر دن روشن ہوتا ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، مہینے ختم ہو جاتے ہیں، سال ختم ہو جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں بڑی عبرتیں ہیں، اور یہ چیزیں سوئے ہوئے ضمیر کو جگاتی ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہے، اور انسان ان تمام چیزوں سے عبرت پکڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اور اللہ تعالیٰ ہی رات و دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، اور آنکھیں رکھنے والوں کے لیے ان تمام چیزوں میں یقیناً بڑی عبرتیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کہا، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا، اور کہہ رہا ہے کہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ رات اس دن کو جلدی آ لیتی ہے۔ یعنی رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چھپ جاتی ہے، سورج آتا ہے، سورج کے ڈوبنے کے بعد چاند نکلتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ عزیزان ملت، وقت کی سبق رفتاری مجھ کو اور آپ کو دنیا سے دور اور آخرت سے قریب بنا رہی ہے۔ انسان کا ہر پل، ہر لمحہ دنیا سے دور، آخرت حساب و کتاب کے دن سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن ولکل واحدت منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا پیٹ پھیر کر کے جا رہی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے، ان دونوں کے بیٹے ہیں، تم
दुनिया के बेटे ना बनना, तुम आखिरत के बेटे बनो। आज बात असल ये है कि आज अमल ही अमल है, हिसाब नहीं है। कल हिसाब ही हिसाब होगा और अमल नहीं होगा। अजीजान मिल्लत, चैलेंजों के दरमियान जमाना कयामत की चाल चल रहा है। आप देखो, वक्त गुजरता है तो दूसरा वक्त शुरू हो जाता है, एक साल खत्म होता है तो दूसरा साल जन्म लेता है, दिन गुजर जाते हैं और अल्लाह ताला का अपनी इस कायनात में एक कानून कार फरमा है कि दिन बीतते हैं, महीने गुजरते हैं, साल पर साल बीतते हैं। अल्लाह ने कहा वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। आप देखो, इन्हीं सालों में से एक साल अपना दौरानिया मुकम्मल करके हमसे रुखसत हो चुका है। हम हिजरी साल के एतबार से नए साल में दाखिल हो चुके हैं और ये मुहर्रम का महीना है। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से ये इस्लाम का पहला, हिजरी एतबार से पहला महीना है और हम पिछले साल को रुखसत करके इस नए साल में दाखिल हो चुके हैं। अब मुझको और आपको अपना अपना मुहासबा करना है, अपना अपना जायजा लेना है। मुझको और आपको देखना है कि मैंने और आपने पिछले साल क्या पाया है, क्या खोया है, कितनी नेकियां मैंने और आपने जमा की है, कितनी नाफरमानियां, कितनी गुस्ताखियां, कितनी गलत हरकतें मुझसे और आपसे पिछले महीने, पिछले साल हुई है। इन तमाम चीजों का मुझको और आपको जायजा लेना होगा। अपने गिरेबानों में झांक करके अपने आप से पूछना होगा कि हमने पिछले साल क्या पाया है और क्या खोया है, और इस नए साल की आमद पर मेरे और आपके इरादे क्या होने चाहिए। क्योंकि मेरे भाइयों, याद रखे, जब इंसान इस दुनिया से कूच कर जाता है, इस दुनिया को छोड़ता है, तो वो अपनी यादों को, अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफों को, खुशियों को, गमों को इस तरह समेट करके इस दुनिया को छोड़ करके जाता है कि उसे इस दुनिया में दोबारा कभी लौट करके नहीं आना है। तो इसीलिए मुझको और आपको अपना अपना जायजा लेना है। तो साले नौ की आमद से मुताल्लिक चंद अहम बातें एहतेसाबी, खुद एहतेसाबी से मुताल्लिक आप लोगों की खिदमत में रखने की कोशिश करूंगा। ये खुद एहतेसाबी क्या है, किसको कहते हैं, मुहासबा नफ्स किसको कहा जाता है? एहतेसाब का माना है, इमाम नववी रहमहुल्लाह एहतेसाब की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि इंसान से दीन के उजाले में, रात के अंधेरे में जो चीजें उससे सादिर होती है, इन तमाम चीजों का जायजा लेना है कि दिन के उजाले में मैंने और आपने क्या किया है, दिन के उजाले में किस कदर मैंने और आपने रब को राजी किया है, और कैसी नाफरमानियां मुझसे और आपसे हुई है, और रात के अंधेरे में कितने आराम और सुकून की नींद मैंने और आपने सोई है, और कितनी नाफरमानियां, रब को नाराज करने वाली चीजें मैंने और आपने की है। इन तमाम चीजों का जायजा लेना है। अगर दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में मुझसे और आपसे अच्छाइयां हुई है, अच्छे काम हुए हैं, नेक काम हुए हैं, तो इन तमाम कामों पर बरकरार रखना है और इन तमाम कामों को मजीद आगे बढ़ाने का अज़्म, इरादा पुख्ता होना चाहिए। और अगर मुझसे और आपसे दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में गुनाह के काम सरजद हुए हैं, बुरे अफआल, बुरे आमाल सरजद हुए हैं, तो उन तमाम, इन जैसे तमाम दिगर आमाल व अफआल को छोड़ने का इरादा होना चाहिए और आइंदा ना करने का अज़्म होना चाहिए। यही एहतिसाब है, यही खुद एहतिसाबी है। मुझको और आपको देखना है क्या मेरे और आपका अमल किताब और सुन्नत के मुताबिक, सलफ सालिहीन के फहम के मुताबिक है या नहीं है। पिछले मुहर्रम हुर्मत वाले महीने में मैं शराबी खबाबी बना रहा, नाचता गाता रहा,
ان ڈھول تاشوں کے سامنے، ہاں ان ڈیجوں کے سامنے شیطانی حرکتیں کرتا رہا اور اہل بیت کی توہین کرتا رہا، ناجائز کام اہل بیت کی محبت کے نام پر میں انجام دیتا رہا، اور عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی ان بنائے ہوئے تابوتوں کے آگے اپنے آپ کو شریک کرتی رہی، اور کل فاتحہ نظر و نیاز کے یہ جتنے کھانے ہیں خود بھی کھاتی رہی اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتی رہی، اور پنجتن کا نشان بنا کر گلی گلی گھوم گھوم کر کے ہاں ان تابوتوں کے سامنے ہم سارا دن مجاور بن کے ٹھہرے رہے۔ بھائیوں، مجھ کو اور آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ پچھلے محرم حرمت والے مہینے میں مجھ سے اور آپ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہے، بہت ساری نافرمانیاں ہوئی ہے، لیکن یہ عزم کیجئے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ اللہ سے معافی مانگو، حق کی تلاش میں نکلو، تحقیق کرو، جانو، دیکھو کہ حقیقت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ مولوی ملا لوگ تمہیں اندھیروں میں رکھے ہیں، تمہیں اندھیروں میں رکھے ہیں، اور تم اندھیروں کی دنیا میں ہی جی رہے ہو، اپنا اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہو، تمہیں روشنی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر تمہیں روشنی دکھائی دے گی تو ان کے دکانیں بند ہو جائے گی، ان کا دانا پانی بند ہو جائے گا، اسی لیے یہ لوگ تمہاری آنکھوں پر پٹی ڈال دیے ہیں، اور تم محرم کے نام پر یہ ساری کی ساری چیزیں جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ناجائز چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ یہی احتساب ہے، اسی کا محاسبہ مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے۔ مائیں بہنیں بھی سن لیں کہ پچھلے محرم تو بہت ساری غلط چیزیں ہم نے کی ہے، لیکن اس محرم کے بعد ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑ کر کے نہیں چلیں گے، ہم کبھی بھی حضرات صحابہ کرام کے راستے کو ترک نہیں کریں گے، کیونکہ جس نے اللہ کے فرامین کو چھوڑ دیا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا، جس نے حضرات صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھے دنیا آپ کو کچھ بھی کہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ عزیزان ملت، محاسبہ نفس، مجھ کو اور آپ کو نفس کا محاسبہ کرنا ہے نا۔ ہاں، تو نفس کا کیا معنی ہے؟ احتسابی کا معنی تو آپ نے جانا کہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جو چیزیں مجھ سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہے، انجام پائی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، کھنگالنا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہے یا نہیں ہے، کیا یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے، اگر ثابت ہے تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ نفس کا کیا معنی ہے؟ نفس یہ روح، جسم اور خون کا لطیف مادہ ہے، یہ ان تینوں پر مشتمل ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک چیز بھی نہ پائی جائے تو انسان کی حیات، زندگی باقی نہیں رہے گی۔ روح، جسم اور یہ خون کا لطیف مادہ ہے۔ اب نفس پر بات ہو رہی ہے تو نفس کے دائرے میں ہی کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اپنے نفس کو ٹٹولو، اپنے نفس کو کھنگالو، اپنی جانچ پڑتال کرو اور دیکھو کہ میرا نفس کس کیٹیگری کا ہے، میرا نفس کس کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے، میرے نفس کا لیول کیا ہے، اور مجھے اپنے نفس کو کس لیول میں لانا ہے۔ ان تمام چیزوں کا محاسبہ مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے۔ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نفس امارہ، نفس کی دوسری قسم نفس لوامہ ہے، نفس کی تیسری قسم نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جس میں خیر کا، بھلائی کا، اچھائیوں کا کوئی پہلو نہیں رہتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس میں برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہے، اور یہ وہ نفس ہے جو انسان کو خواہشات کی طرف، برے اخلاق کی طرف، بری عادات کی طرف کھینچتا ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی اچھائی نہیں ہوتی ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اور آج کا نوجوان
इसी नफ्स का शिकार बना बैठा है। और आज का नौजवान इसी नफ्स का, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बना बैठा है। आज के नौजवान को हक जानना नहीं है, और हक तक रसाई करने वाली जो चीजें हैं नौजवान उसको कबूल करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ख्वाहिशात में जकड़ा हुआ है, और ये अपने ख्वाहिशात में जकड़े रहने का ही नतीजा है जो मैं और आप मुहर्रम के महीने में देखते हैं, है ना। मुहर्रम के महीने में मैं और आप देखते हैं। आप देखो, मुहर्रम के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये नफ्से लवामा नहीं है, ये नफ्से मुतमइन्ना नहीं है, ये नफ्से अम्मारा है। ये बुरा नफ्स है, ये बुरा नफ्स है जो इंसान को ख्वाहिशात में डुबा रहा है, जो इंसान को नाफरमानियों में डुबा रहा है, जो इंसान को गुस्ताखियों में डुबा रहा है। मुहर्रम की क्या शरई हकीकत है? मुहर्रम ये इस्लाम का महीना है, ये रब्बुल आलमीन का महीना है। और मुहर्रम की जो हकीकत है कि मुहर्रम के महीने में खून रेजी से शरीयत इस्लामिया मना करती है, कत्ल व गारतगिरी से रोकती है, मना करती है। और अल्लाह का ये महीना है, और इस महीने में मुझको और आपको रोजे रखना है। क्या करना है? रोजे रखना है। अब नफ्से अम्मारा की शक्लें देखें, बुरे नफ्स को टटोलो, देखो कि आपकी आंखों से नजर दौड़ाओ, देखो कि दूर दूर तक क्या चल रहा है। ये नफ्से अम्मारा की शक्लें हैं, ये बुरा नफ्स है जो इंसान को ख्वाहिशात के गड़े में डाल रहा है। वो कैसे? देखो, मुहर्रम का महीना शुरू होते ही बहुत सारी बातें हैं, चंद एक आपके सामने जिक्र। कब्रिस्तान की साफ सफाई शुरू हो जाती है, कब्रों को लाइटिंगे लगाए जाते हैं, और खुसूसन 10 मुहर्रम को कब्रें और कब्रिस्तान को बारौनक बनाया जाता है। मर्द व औरत का इख्तिलात। फिर क्या होता है? छोटे बड़े, नौजवान, बूढ़े एक हुजूम की शक्ल में कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। एक तरफ आप देखो ये फूल माला अगरबत्ती का कारोबार, तो दूसरी तरफ मर्द व औरत का इख्तिलात। आप देखो कि कब्रिस्तान जाकर के नजर नियाज की जाती है। आप देखो कि इन कब्रों में लेटे हुए मदफून लोगों से इस्तिगासा किया जाता है। कुल फातिहा पढ़ करके खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। भाइयों, नजर नियाज और इस्तिगासा अगर आप अल्लाह को छोड़कर किसी और के लिए करोगे तो ये शिर्क है, ये शिर्क है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम शिरकिया और बिदइया अफआल से रोका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबदु इश्तद्द ग़ज़बुल्लाहि अला क़ौमिन इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुतगाह ना बनाना कि जिसे लोग पूजना शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सख्त गजब और कहर नाजिल हुआ है उन लोगों पर जिन्होंने अपने अंबिया किराम की कब्रों को सजदागाह, इबादतगाह बना लिया है। आप देखो कि इन कब्रों से मांगा जाता है, इन कब्रों के सामने सजदे किए जाते हैं। और 10 मुहर्रम की आप सारी शक्लें देखो, अब नया नया नाटक शुरू हो गया है। क्या है कि यहां से यहां पट्टा डालेंगे, सर पर पट्टी डालेंगे और निकल जाएंगे रास्तों से, सड़कों से, सीधा कहां पहुंचेंगे? कब्रिस्तान पहुंचेंगे। ये फूल माला अगरबत्ती, ये सारी रस्में वहां देखने को मिलती है। क्या ये नहीं होता है? ये नफ्से अम्मारा है, ये नफ्से अम्मारा है। अजीजान मिल्लत, जो हक अल्लाह का है अगर वो हक आप किसी और को देंगे तो ये शिर्क है। ये क्या है? शिर्क है। हजरात सहाबाए किराम और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मोहब्बत ये मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है। लेकिन मातम के नाम पर, गम के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, हाँ, ये सारी नाजायज चीजों को अंजाम देना, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की सबीलें लगाना, नजर नियाज करना, ये कहां है? ये कहां है? अगर कोई भाई करता है, अगर कोई माँ इन चीजों को अंजाम देती है तो सुन ले, ये नफ्से अम्मारा है, ये बुरा नफ्स है। आप ख्वाहिशात के गुलाम बने हुए हो, इसीलिए इन तमाम चीजों को आप अंजाम दे रहे हो। आप देखें कि मुहर्रम शुरू होते ही
मुहर्रम की इब्तिदाई तारीख से ही घरों में खूब नियाज का एहतमाम किया जाता है। खिचड़ा, हलीम, बिरयानी, हाँ, मटर पुलाव, जर्दा, फिरनी वगैरह, ये सारी चीजें खुद भी खाई जाती है और दूसरों को भी खिलाई जाती है, और बतौर नियाज, बतौर नजर कब्रों और आस्थानों पर भी पेश किया जाता है। ये सारी चीजें हमारे यहां पर पाई जाती है। आप देखो कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के नाम पर क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं। हाँ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का नाम लेकर के ये झूठी मोहब्बत के दावे करके अहले बैत की तौहीन करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर पानी बंद किया गया था, इसीलिए हम ये सबीलें लगा रहे हैं। क्या बोलते हैं? दलील के तौर पर उन पर पानी बंद किया गया था। और क्या कहते हैं? कभी कभी कहते हैं कि 10 मुहर्रम को जिसने अपने अहलो अयाल के रिज्क में हाँ कुशादगी की, तो अल्लाह ताला साल भर उसके रिज्क में कुशादगी करता है। ये आपने कहां से पढ़ा है? ये आपने कहां से सुना है? आप तमाम हजरत इन झूठे वाइजिन, किस्सा गो, जाकिरीन का आलाकार बने हुए हो, और ये लोग तुम्हें हजरात सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन अहले बैत की झूठी मोहब्बत का ऐसा डोज दे रहे हैं कि तुम हजरात सहाबा किराम और अहले बैत की हकीकी मोहब्बत से मुतनफिर हो रहे हो, भाग रहे हो। हकीकत को जानो, हकीकत की दुनिया में आओ, देखो कि हकीकत क्या है। आपको किसने कहा कि ना करो? आप हकीकत को तो पहचानो, हकीकत को जानो, फिर आपका दिल आपको खुद कहेगा कि मैं अब तक जो कर रहा था ये तमाम की तमाम चीजें गलत थी, अब शरीयत जो मुझे कहती है मैं वो करूंगा। हकीकत को जानेंगे तो आपके सामने हकीकत खुलेगी, हकीकत से भागोगे तो हकीकत कहां खुल पाएगी। अजीजान मिल्लत, आप देखो, मैंने कहा कि हजरात सहाबा इकराम और अहले बैत की मोहब्बत जो है ना, ये कोई तारीखी बात नहीं है, ये मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है कि तमाम के तमाम सहाबा इकराम से मेरी और आपकी मोहब्बत मजबूत होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, लेकिन झूठी मोहब्बत नहीं चलेगी, झूठी मोहब्बत नहीं चलेगी। आप देखो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत और मातम के पसे मंजर में आप देखो ये मातम क्या है। हाँ, रोना धोना पिटना, अपने जिस्म पर जुल्म करना, पीठ पर वार करना, खंजर, हथियार, चाकू, इन तमाम चीजों से इंसान मारता है। और सबसे ज्यादा आप राफिजियत को देखेंगे कि वो इस मिशन में, इस काम में आगे आगे रहते हैं और आप 2 कदम उनके पीछे चल रहे हो। वो कैसे? आप ये टायर की चाबुक बनाते हो, नौजवानों को देखो, चाबुक बना करके अपने हाथों पर मारे या पैर पर मारे, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या ये इस्लाम है? क्या ये दीन है? क्या इस्लाम तुम्हें इसकी इजाजत देता है कि तुम इस तरह की हरकतें करो? अगर देता है तो हमें बताओ, हम सबसे आगे रहेंगे। हमें बताओ, पूरी दुनिया में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि अगर कुरान और हदीस से ये चीजें साबित है तो आदमी को बताना चाहिए। जब साबित नहीं है तो क्यों करेंगे? और जो करेगा उसको रोकेंगे, उसको बताएंगे। उसके बावजूद भी अगर नहीं रुकता है तो फिर उसका मामला बड़ा ही भयानक और खतरनाक होने वाला है। अजीजान मिल्लत, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत और मातम के पसे मंजर में जिस तरह सहाबी रसूल, हिल्म व बुर्दबारी का पैकर, सिद्क़ व सफ़ा का बहरे बेकराम, मुहिब्ब रसूल और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअतमिद और खास दुआओं के मिस्दाक हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु पर लान व तान का दरवाजा खोला जाता है। आपको यह हकीकत मालूम नहीं है कि आपको हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम पर जिस तरह दिगर सहाबा इकराम का बागी बनाया जाता है, आपको नहीं मालूम है कि आदमी जोश खरोश में आकर के या हुसैन के नारे लगा करके दिगर सहाबा इकराम की तौहीन करता है, दिगर अहले बैत की तौहीन करता है। अगर आपको वाकई मानों में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु से मोहब्बत है तो उनके रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का रास्ता, हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु का रास्ता और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का रास्ता और दिगर सहाबा इकराम का रास्ता कौन सा रास्ता है?
कुरान और हदीस का रास्ता है, इस रास्ते पर चलो तो हकीकी मोहब्बत हो जाएगी, वरना ये झूठे दावे करते रहोगे तो ये हकीकी मोहब्बत नहीं है। भाइयों, आप बताओ कि हजरत सहाबा किराम समेत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शेब अबी तालिब में 3 साल तक महसूर किया गया था। कितने? 3 साल तक बंद कर दिया गया था, दाना पानी सब बंद कर दिया गया था। तो आप बताओ, क्या हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और हजरत सहाबा किराम की याद में 3 साल तक अपने ऊपर खाना दाना पानी बंद कर लेंगे? हाँ, अगर कोई कर लेता है तो वो जिंदा नहीं रहेगा और कोई करेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन मौलियों को अच्छा खाने की आदत पड़ गई है। ये पेट के पुजारी बने हुए हैं जो अच्छी कहानियां बता करके आप लोगों के जहनों को मुतनफिर कर रहे हैं और आपके घरों में घुस करके अच्छा पकाया हुआ खिचड़ी, हलीम, बिरयानी, जर्दा, फिरनी सब खा रहे हैं और पेट भर के निकलते हैं और 2 दुआएं आपको दे करके जाते हैं। भाइयों, ये इस्लाम है क्या? आपने इसी को इस्लाम समझा? आपको हकीकत से रोशनास कर रहा हूं, हकीकत को जानो। आप हकीकत से बहुत दूर हो। ये नफ्से अम्मारा की शक्लें बता रहा हूं। ये नफ्से अम्मारा है जो आपको ख्वाहिशात में डुबा रहा है, जो आपको नाफरमानियों में डुबा रहा है। आप देखो, मुहर्रम के महीने में मुहर्रम की पट्टी के नाम पर, मुहर्रम के मिट्टों के नाम पर, हाँ, मुहर्रम में मातम के नाम पर, मुहर्रम में ताजिया के नाम पर, मुहर्रम में ये अलावे के नाम पर ये दायरा काट करके, आग सिलगा करके उस पर नाचना, कूदना, उछलना, ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये ख्वाहिशात नफ्स है और कुछ नहीं है। ये ख्वाहिशात नफ्स है जो आपका नफ्स इन ख्वाहिशात में आपको डुबो रहा है, आपको जकड़ रहा है और आप नाफरमानियों पर नाफरमानियां किए जा रहे हैं। अजीजान मिल्लत, ये नफ्से अम्मारा है जिसमें कोई खैर का पहलू नहीं होता है, जिसमें अच्छाइयां भलाइयां नहीं होती है, जिसमें नाफरमानियां ही नाफरमानियां होती है। और आज का नौजवान इसी नफ्से अम्मारा का शिकार बन चुका है। आप अपना जायजा लो, घरों को जाओ, देखो क्या मेरा नफ्स वाकई मानों में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करो और नए साल की आमद शुरू हो चुकी है। किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने के पाबंद बन जाओ। ये नफ्से अम्मारा था। और नफ्स की दूसरी किस्म नफ्से लव्वामा है। नफ्स की दूसरी किस्म नफ्से लव्वामा है। इस नफ्स में अच्छाइयां भी होती है, भलाइयां होती है, खैर होता है और शर भी होता है, नाफरमानियां भी होती है। ये वो नफ्स है, अगर इंसान अच्छाई के कामों को, भलाई के कामों को कम करता है तो ये नफ्स उस पर मलामत करता है और अगर बुराई के, नाफरमानी के, शर के काम करता है तो ये नफ्स उसको झंझोड़ता है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में इस नफ्स की कसम उठाई है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। और अल्लाह ने इस नफ्स की कसम उठाई कि हम मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाते हैं। भाइयों, ये वो नफ्स है जिसमें अच्छाइयों का पहलू गालिब होता है, जिसमें बुराइयां भी होती है। अगर इस नफ्स में इंसान के अंदर खैर गालिब आ गया तो इंसान कामयाब हो गया। आप देखो ये नफ्स कैसा है, आपको मिसाल देकर के समझाता हूं। अब इंसान फर्ज नमाजों को अहमियत ना दे और ढोल ताशे, गाने बजाने, नाचने कूदने को अहमियत दे, इंसान रब के आगे सजदा करने को अहमियत ना दे, लेकिन इन बनाए हुए ताबूतों के आगे सजदा करने को अहमियत दे, इंसान सूरतुल फातिहा और कुरानी आयतों को पढ़ करके उसको अमली जामा पहनाने की फिक्र ना करे, लेकिन फिक्र इस बात की हो कि फातिहा पढ़ी जाएगी, कुल पढ़ा जाएगा और इसको पढ़ करके खुद भी खाया जाएगा, दूसरों को भी खिलाया जाएगा। अगर ये इंसान के अंदर ये नफ्स है तो फिर ये नफ्से लव्वामा उसको झंझोड़ता है और खैर की कामों की तरफ उसको खींचता है। ये नफ्से लव्वामा है। अगर इंसान के अंदर खैर गालिब है तो इंसान नेकियों में आगे बढ़ जाएगा और इंसान को नफ्से लव्वामा समझ आ जाए ना तो इंसान खैर को जानेगा, पहचानेगा, खैर के काम करेगा, शर को जानेगा, पहचानेगा, शर से दूर रहेगा, नेकी को जानेगा, नेकी को अंजाम देगा, बदी को जानेगा, बदी से पीछे रहेगा, हक को जानेगा, हक के रास्ते पर चलेगा,
गुमराही को जानेगा, पहचानेगा और गुमराही से बच जाएगा। ये नफ्स लव्वामा है। और अगर नफ्स अम्मारा दब जाए और नफ्स लव्वामा बाहर आ जाए तो इंसान खैर के काम ही अंजाम देता रहेगा। और उसके उलट आ जाओ, अगर नफ्स लव्वामा दब जाए, नफ्स अम्मारा बाहर आ जाए तो फिर इंसान नफ्स परस्त, ख्वाहिश परस्त बन जाता है और कदम कदम पर इंसान से नाफरमानियां, शैतानी हरकतें सरजद होना शुरू हो जाती है और इंसान को अच्छाई, भलाई, नेकी के काम बोझ होने लगते हैं। कब? जब नफ्से लव्वामा दब जाता है और नफ्से अम्मारा बाहर आ जाता है। और जब नफ्से लव्वामा बाहर आए, नफ्से अम्मारा दब जाए तो इंसान को अच्छाई के काम करने में सुकून मिलता है। इसी की तीसरी किस्म नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है। इसी की तीसरी किस्म को नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है। ये वो नफ्स है इंसान को अच्छाइयां कर करके, भलाइयां कर करके सुकून, इत्मीनान हासिल हो जाता है और इसको नफ्से मुतमइन्ना कहा जाता है। आमाले सालिहा और दिगर नेक इबादत इंसान को अंजाम देना कोई बोझ नहीं लगता है। ये नफ्से मुतमइन्ना है। आप देखो, इंसान किसी नेकी को अंजाम दे, ये बोझ नहीं लगेगा। वो नेकी उससे छूट जाए, उसको बोझ लगेगा, तो समझ जाओ ये नफ्से मुतमइन्ना है। इंसान के लिए फजर की नमाज पढ़ना, नमाजों की पाबंदी करना बोझ नहीं लगेगा। उसकी जिंदगी से नमाजों का निकल जाना बोझ लगेगा। इंसान को सुबह में उठ करके नमाज में शरीक होना बोझ नहीं लगेगा। नमाज छोड़ करके सोए रहना बोझ लगेगा। इंसान को वालिदैन की खिदमत करना बोझ नहीं लगेगा। वालिदैन के साथ बुरा सुलूक करना बोझ लगेगा। इंसान को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बोझ नहीं लगेगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च न करना बोझ लगेगा। ये क्या है? जब ऐसा लग जाए ना तो समझ जाओ ये नफ्से मुतमइन्ना है। और आज इसकी जरूरत है कि मैं और आप अपने नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बनाए, अच्छाइयां करे, भलाइयों के कामों को अंजाम दो। जब इंसान भलाई और अच्छाई के कामों को अंजाम देता है तो उसका नफ्स सुकून, इत्मीनान हासिल करता है और दिन का कितना भी बड़ा और मुश्किल सा काम उसको आसान लगना शुरू हो जाता है। ये नफ्से मुतमइन्ना है। आप देखो, हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की यही कैफियत थी, नफ्से मुतमइन्ना की कैफियत थी। आप देखो, अल्लाह ने कहा वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने हजरत सहाबा किराम के दिलों में ईमान की मोहब्बत को डाल दिया था और यही कैफियत थी। वो अच्छाइयां कर करके मजीद अच्छाइयों को अंजाम देने की फिक्र में थी क्योंकि उनका नफ्स नफ्से मुतमइन्ना बन गया था। अल्लाह ने कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स, ऐ इत्मीनान वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, तू अपने रब की तरफ इस तरह लौट कि तू उससे राजी और वो तुझसे खुश, और मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये कौन सा नफ्स है? ये नफ्स मुतमइन्ना है। एक वाकया बता करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप देखो कि हजरत सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का कैसे ईमान था, कैसे ईमान की हलावत उन्होंने चाकी है, कैसे ईमान की चाशनी उन्हें नसीब हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, रास्ते में एक दफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से उनकी मुलाकात हो गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु से खैर खैरियत दरियाफ्त किया तो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को जवाब दिया, अबू बकर सिद्दीक, हंज़ला मुनाफिक हो गया है, हंज़ला मुनाफिक हो गया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु परेशान, अरे हंज़ला, ये क्या बात तुम कह रहे हो, ये क्या बात तुम कह रहे हो? हंज़ला रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अरे अबू बकर सिद्दीक, जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं और आप जन्नत और जहन्नम के तज़किरे हमारे सामने करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम जन्नत को, जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जब हम अल्लाह के रसूल की मजलिस को छोड़ करके अपने घर बार की तरफ लौटते हैं, अपने कारोबार
खेती बाड़ी की तरफ लौटते हैं, अपनी बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हैं, तो वो मेरी कैफियत नहीं रहती है। फिर क्या होता है, ये दोनों उठ करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंज़ला मुनाफिक हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, ये बात क्या कही तुमने? तो बताया हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐ अल्लाह के रसूल, जब मैं आपकी मजलिस में बैठता हूं और आप जन्नत जहन्नम के तज़किरे करते हैं, गोया ऐसे लगता है कि हम उनको अपनी आंखों से देख रहे हैं। जैसे ही आपकी मजलिस छोड़ करके अपने घरों को चले जाते हैं तो मेरी ये कैफियत नहीं रहती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐ हंज़ला, जो कैफियत आपकी इस मजलिस में रहती है, अगर यही कैफियत आपकी हमेशा रहेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते आपकी बिस्तरों पर, आपके रास्तों पर आपसे मुसाफा करेंगे। इतनी बड़ी बात, सहाबा इकराम का शौक देखे, कैसे अपने नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बनाने की कोशिश है। आज कहां इंसान ख्वाहिशात में झगड़ा हुआ है, आज कहां इंसान नाफरमानियों पर नाफरमानियां, गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां किए जा रहा है। ये कैफियत मेरी और आपकी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ऐ हंज़ला, एक घड़ी इस तरह से है तो दूसरी घड़ी ऐसी ही नहीं रहती है। मतलब आपसे कोई काम गलत हो जाए, नाफरमानी हो जाए, तो फौरी तौर पर खैर के कामों को ढूंढो, खैर के कामों को, नेकी के कामों को तलाश करो और नेकी के कामों को अंजाम देने वाले बन जाओ, क्योंकि नेकियां कर करके आपका नफ्स इत्मीनान व सुकून हासिल करेगा। वरना मेरे भाइयों, ये दुनिया की आराइशें, ये दुनिया की मौज मस्तियां हैं जो आज हम दुनिया में देखते हैं कि इंसान मुहर्रम आते ही नाचता है, गाता है, शराबी खबाबी बनता है। और क्या है, आप देखो, हमें नहीं मालूम, यकीन के साथ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जितने ये पंजे पकड़ करके घूमते हैं ना, ये सब बेनमाजी होते हैं, ये सब नाफरमान होते हैं। इन लोगों को इस्लाम क्या है पता नहीं है, बस झूमते हैं। और यही जब नफ्से अम्मारा गालिब हो जाता है ना, तो इंसान अल्लाह ताला के नारों के सामने या अली का नारा लगाता है, या हुसैन का नारा लगाता है, या मुईन का नारा लगाता है। ये कब होता है? जब इंसान पर नफ्से अम्मारा गालिब हो जाता है। और मुहर्रम के महीने में यही सारी तस्वीरें मेरी और आपकी आंखों के सामने है, सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। या हुसैन करके इंसान झूमता है और हमारी माएं बहनें इन नाफरमानों से, बेनमाजियों से आगे की मालूमात, आगे की खबरें मालूम करने की कोशिश करती है। ये कितनी बड़ी जहालत, ये कितनी बड़ी जहालत है। भाइयों, इस जहालत से निकलो। अगर आपने हमारी आवाज सुनी है तो आपका ये फरीजा है कि हमारी बात अपने घर वालों तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाओ, उन्हें बताओ कि हम जो कर रहे हैं ये सारी की सारी चीजें गलत है। और ये बात याद रखे, बातिल एड़ी चोटी का जोर लगा ले, बातिल शर के कामों को अंजाम देने के लिए खून पसीना बहा दे, ये वक्ती तौर पर रहेगा, बातिल मिट जाएगा, हक का बोल बाला रहेगा, तौहीद सर चढ़ करके बोलेगी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का ये पैगाम दुनिया में आम होकर के रहेगा। ये कुरान व हदीस की तालीमात बताती है। मेरे और आपका इन तमाम बातों पर यकीन है, ईमान है। अगर आप इन चीजों में मुलव्वस हैं, मुहर्रम के महीने में जो चीजें की जाती है, ये पंजे बटा करके सारा दिन वहां बैठ करके मुजावरत करना और आने वालों के सरों पर ये क्या है, कट्टा मारना, ये सारी चीजों में अगर मुलव्वस है, अल्लाह के लिए कह रहा हूं, अल्लाह के लिए कह रहा हूं, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अगर अब नहीं संभलोगे तो गया वक्त फिर हाथ नहीं आएगा, फिर अल्लाह ताला के अज़ाबात के अज़ाबात का शिकार हो जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत, ये कुछ बातें थी जो मैंने मुख्तसर तौर पर आप लोगों की खिदमत में रखी है। खुलासा कलाम यही है कि नए साल की आमद और खुद एहतिसाबी, नए साल की आमद, दिनों रात का बदलना, अय्याम का बदलना, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की जानिब से है। और इसमें इंसानों के लिए बड़ी इबरतें हैं, क्योंकि इंसान को मालूम हो जाएगा जब रात को वही बदलता है, दिन को वही बदलता है, तो हमारी जरूरतों को भी वही पूरी करेगा, क्योंकि हम तमाम उसी के बंदे हैं, उसी की इबादत करनी है। तो इंसान ये बात समझ जाएगा। और नए साल की आमद
خود احتسابی مجھ کو اور آپ کو، ہر ماں کو، ہر بہن کو، ہر بھائی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ پچھلے محرم میں تو بہت سارے غلط کام ہم نے انجام دیے ہیں، لیکن اس محرم کے بعد، اس محرم کے مہینے سے اس کے بعد کبھی بھی ہم نافرمانیوں کے، غلط کاموں کے رسم و رواج کو انجام نہیں دیں گے۔ یہ خود باتیں تھی محاسبہ نفس سے متعلق۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جس میں خیر کا پہلو نہیں رہتا ہے، برائیاں ہی برائیاں اس میں ہوتی ہے، یہ خواہشات کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ دوسرا نفس نفس لوامہ ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہے اور برائیاں بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان اچھے کاموں کو انجام نہیں دیتا ہے تو یہ نفس انسان پر ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے غافل انسان، اچھائیوں کو انجام دے اور برائیوں سے رک جا۔ پھر انسان اس نفس میں آ جاتا ہے تو اچھائیاں کر کر کے، نیکیاں کر کر کے اس کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اسی کا نام نفس مطمئنہ ہے۔ اور اسی نفس کو اللہ نے کہا کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔